دل کے پختہ ارادے کو. اب دل کے اندر میں نے ارادہ کیا, میں یہاں پر نل کے سامنے آ کر بیٹھا ہوں, تو ظاہر سی بات ہے میری نیت یہی ہے کہ میں وضو کر کر آپ کو بتاؤں گا, تو میری نیت وضو کرنے کی ہے. زبان سے نیت کرنا یہ کوئی لازم نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن دل کے پختہ ارادہ جو ہے یہ نیت ہے. اب میری نیت ہو چکی ہے, میں نے نیت کر لی کہ میں وضو کر کر دکھا رہا ہوں آپ کو, یا میں وضو کر رہا ہوں, یہ نیت ہوگی میری. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, کیونکہ دو حدیثوں کا مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کیا, اس نے سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم اس کا پاک ہو گیا. لیکن اگر کسی نے بسم اللہ کے بغیر وضو شروع کیا تو اس کے وہی اعضاء دھل جائیں گے, وہی اعضاء پاک ہوں گے جس کو اس نے دھو لیا. تو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے وضو. جب بھی وضو کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اگر بسم اللہ نہیں پڑھے, بھول گئے, تو اس سے وضو میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وضو نہیں ہوگا, لیکن بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ لی جائے. اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے. ہاتھ دھونا کا طریقہ یہ ہے کہ گٹوں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھلنے چاہیے, جس طرح کہ میں آپ کو بتاتا ہوں دھو کر. یہ 3 مرتبہ ہم نے گٹوں تک ہاتھ دھو لیے. یہاں اس کو گٹ کہتے ہیں, یہ جو ہے یہ گٹ ہے. یہاں 3 مرتبہ ہم نے ہاتھ دھو لیے اچھے طریقے سے. یاد رکھیے گا جب بھی وضو کریں تو پانی کا اسراف نہ کریں, پانی ضائع مت کریں, اتنا ہی پانی لیں جتنا آپ کو ضرورت ہو. اگر پانی ضائع کریں تو اس سے بھی بندہ گناہگار ہوتا. لیکن اب ہم نے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیے اس طریقے سے. یہ دیکھیں نا, یہ ہاتھ دھل گیا, 3 مرتبہ یہ ہاتھ دھو لیے اچھے طریقے سے. ایسے بھی کر لیں, کیونکہ سردیوں میں جلد خشک ہوتی ہے تو زیادہ جلدی جو ہے پانی جلد کو نہیں پکڑ پاتا. تو یہ ہم نے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیے. اس کے بعد کلی کریں گے. اب جو کلی کے اندر غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, بعض دفعہ لوگ تھوڑا سا پانی لیتے ہیں چلو میں اور منہ کے اندر ڈال کر فوراً سے منہ سے اگل دیتے ہیں. یہ بالکل بھی غلط ہے. یہ طریقہ, کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کے جو تمام پرزے ہیں, ہر پرزے میں, ہر گوشے میں پانی پہنچنا ضروری ہے. میں آپ کو کر کر دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے کلی کرنی ہے. یہ پانی لیا ہم نے تھوڑا سا چلو میں, یہ ہم نے 1 مرتبہ کلی کر لی ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حضرات پان کھاتے ہیں, گٹکا کھاتے ہیں, یا جو چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں ہمارے دوست, ان کے لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ پان کا, گٹکے کا یا چھالیے کا کوئی دانہ وغیرہ ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ منہ کے اندر, دانتوں کے اندر پھنس کر رہ جاتا ہے. تو منہ کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو اچھے طریقے سے باہر نکالنا ہے, صاف کرنا ہے بالکل. جہاں تک ممکن ہو اس کو باہر نکالیں. اگر کوئی گٹکا یا پان کا کوئی دانہ وغیرہ پھنس گیا ہے, اب نہیں نکلنا, بہت کوشش کی اپنے, تو آپ اب جو ہے آپ نے دانت کو زخمی نہیں کرنا, کیونکہ اس سے دانت زخمی ہو جائے گا. تو دانت زخمی کرنا یہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے, پھر اس کو رہنے دیں. لیکن جہاں تک کوشش ہو, کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو آپ کر لیں. نکل گیا تو نکل گیا, ورنہ چھوڑ دیں اس کو. یہ ہم نے 1 مرتبہ کلی کر لی تھی, اب دوسری مرتبہ کلی کریں گے. یہ 2 مرتبہ ہم نے کلی کر لی. یاد رکھیے گا اگر روزہ کی حالت میں ہے تو غرغرہ کرنے میں تھوڑی احتیاط کریں, کہ اگر ہلکے سے نیچے پانی اتر گیا تو اس طریقے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ 2 مرتبہ ہم نے کلی کر لی. اس کے بعد ہم تیسری مرتبہ یہ پانی لیں گے. یہ ہم نے 3 مرتبہ جو ہے اب کلی کر لی ہے. اب ہم 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں گے. اب یہاں پر جو غلطی کی جاتی ہے, بعض دفعہ لوگ جو ہے 3 مرتبہ پانی اس طرح بالکل ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں چلو میں, اور ناک کے ساتھ چھلا لیتے ہیں, ناک کو پانی ٹچ کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو گیا. اس طرح بالکل ہی غلط ہے. یاد رکھیے گا ناک کی نرم ہڈی تک یہاں تک پانی چڑھانا یہ ضروری ہے. اگر اس طرح نہیں ہوا تو وضو صحیح نہیں ہوگا. تو یہ میں آپ کو کر کر دکھاتا ہوں. چڑھے گا اس وقت ناک کی نرم ہڈی تک جب آپ جو ہے پانی کو سونگھیں گے, پانی کو اپنی طرف سونگھیں گے, تو اس وقت جو ہے یہ اس طرح ہوگا. یہ میں کر کے دکھاتا ہوں. یہ اس طرح ناک کو سونگھیں گے پانی کو, تو پانی نرم ہڈی تک جائے گا. اس کے بعد ہم بائیں ہاتھ کی چھنگلی انگلی سے ناک کو صاف کریں گے. اب یہ ہم نے 1 مرتبہ جو ہے ناک میں پانی چڑھایا, اب دوسری مرتبہ کریں گے. تو پھر بھی دوسری مرتبہ بھی اسی طرح پانی کو سونگھیں گے, نرم ہڈی تک پہنچائیں گے, اور بائیں ہاتھ کی چھنگلی انگلی سے ناک کو صاف کریں گے.
इस तरीके से जो भी अंदर नाक के अंदर जो गंदगी है वो तमाम की तमाम जो है साफ कर लें। उसके बाद इस तरह के हाथ धो लें इस तरीके से। अब यहाँ पर जो गलती की जाती है वो ये कि जिससे वुजू जो है मकरूह हो जाता है, वो ये कि दाएं हाथ से ही पानी चढ़ाएंगे और दाएं हाथ से ही जो है नाक को साफ करेंगे, तो इस तरीके से वुजू जो है मकरूह हो जाता है। दाएं हाथ से पानी चढ़ाएंगे और बाएं हाथ की छिकली उंगली से या बाएं हाथ से ही नाक साफ करेंगे, ये जो है तरीका है। इस तरीके से वुजू मकरूह नहीं होता। अगर बाएं हाथ से पानी चढ़ाया और दाएं हाथ से नाक साफ कर लिया तो तब भी वुजू मकरूह हो जाएगा। ये हमने 2 मरतबा कर लिया। अब तीसरी मरतबा जो है हम नाक में पानी चढ़ाएंगे। इस तरीके से हाथ को धो लेंगे, ये सही होगा। अब ये हमने नाक में पानी चढ़ा लिया 3 मरतबा। अब हम चेहरा धोएंगे। याद रखिएगा चेहरे का जो हदूद अरबा धोने का वो ये है कि जहां से बाल उगना शुरू होता है, यहां से ये मेरे बाल यहां से उग रहे हैं, यहां से उग रहे हैं, तो मैं यहां से शुरू करूंगा और ठोड़ी के नीचे तक। ठोड़ी कहते हैं ये जो आप इस तरह करेंगे ना, अब ये करेंगे तो जहां पर हड्डी ये खत्म हो रही है, उसके बाद नरम हड्डी शुरू हो रही है, नरम जगह शुरू हो रही है, तो ये जो हड्डी है ये ठोड़ी है, यहां तक जो है धोना, बाल उगने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक। और एक कान की लौ से, ये कान थोड़ा करीब करें, ये एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, बाल उगने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये हदूद अरबा जो है ये धोना जरूरी है। अब मैं आपको धोकर दिखाता हूं कि किस तरह। पानी लिया हमने, नल को फौरन बंद करें। अब सर्दियों में क्या होता है कि जिल्द बहुत खुश्क होती है, तो इसलिए अच्छे तरीके से मसाज जब तक ना करेंगे, मलेंगे नहीं, तब तक पानी जो है जिल्द को अच्छे तरीके से नहीं धो पाएगा। तो इसलिए अब यहां पर जिसकी दाढ़ी घनी हो उसके लिए अलग हुक्म है, लेकिन जिसकी दाढ़ी घनी ना हो उसके लिए अलग हुक्म है। जिसकी दाढ़ी घनी हो तो उसके लिए यह हुक्म है कि उसके जो बाल हैं दाढ़ी के, उनकी जड़ों तक पानी पहुंचना यह जरूरी है। लेकिन अगर किसी की दाढ़ी घनी नहीं है तो उसकी जिल्द तक पानी बह जाना यह जरूरी है। क्योंकि अब मेरी दाढ़ी घनी है तो मैं इसलिए ज्यादा पानी भी ले सकता हूं। अगर दाढ़ी घनी हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये पानी लिया हमने थोड़ा सा, और ऐसे करके मलेंगे, फिर दूसरी मरतबा ऐसे, ताकि कोई भी जगह खुश्क न रह जाए। अब ये एक मरतबा हुआ है, अब हम दूसरी मरतबा पानी लेंगे। अच्छे तरीके से मलेंगे। अब होता ये है, बाज में पानी लेते हैं थोड़ा सा और ऐसे करते हैं, और ये जो जगह है कानों की लौ की ये रह जाती है, तो इस तरीके से हाथ लगाएं, ये ऐसे और ऐसे करके। ये 2 मरतबा हो गया। अब तीसरी मरतबा हम चेहरा धोएंगे। ये इस तरीके से। अब ये जो पानी है इसको इस तरह से कर लेना, ये मुस्तहब है ताकि कपड़े वगैरह खराब ना हो। अब हमने 3 मरतबा जो है चेहरे को अच्छे तरीके से धो लिया है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि किस तरीके से जो है चेहरे को धोना है। अब हम बाजू धोएंगे। तो बाजू धोने का तरीका यह है कि बाजू यहां से शुरू नहीं करेंगे, कोहनियों समेत बाजू धोने। ये कोहनी है, यहां तक बाजू जो है धुलना ये जरूरी है, लेकिन यहां तक आधे बाजू तक जो है पानी के साथ धो लेना बाजू को, ये मुस्तहब है। तो मैं आधे बाजू तक धोऊंगा क्योंकि ये अफजल है। तो अब इसका तरीका यह है कि ऐसे शुरू करेंगे, यहां से शुरू नहीं करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, हाथों की उंगलियों से इस तरीके से करते करते, इस तरीके से मलते हुए हम जो है ऐसे ले आएंगे। और यहां पर ये 1 मरतबा हो गया। फिर दूसरी मरतबा यहां से ऐसे करते हुए, मैं आपको धोकर दिखाता हूं लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये ऐसे हो गया, ये 2 मरतबा हो गया। इस तरह की ये देखें, पानी लिया हमने और यहां से धोना जो शुरू किया। ये हमने धो लिया। अब बज़ाहिर तो दिखने में ये है कि हमने 1 मरतबा धोया मैंने, लेकिन ये मैंने 3 मरतबा धोने की मिकदार पूरी हो गई, मेरी सुन्नत अदा होगी। क्योंकि बहते पानी में अगर किसी अज़ा को 3 दफा धोने की मिकदार रख दिया जाए तो वो अज़ा धुल जाता है। तो क्योंकि बहता पानी था टूटी के नीचे, तो मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, तो ये 3 मरतबा धुल चुका है। अब हम लेफ्ट हैंड जो है वो धोएंगे, लेफ्ट बाजू। उसका भी वही तरीका जिस तरह के हमने दायां बाजू धोया था। याद रखिएगा पानी का इसराफ ना हो, पानी ज़ाया ना हो। जितना हो सके
पानी जो है कम इस्तेमाल करना है, इतना कम भी ना हो जिससे सुन्नत अदा ना हो। तो इस तरीके से भी वुज़ू मकरूह हो जाता है, लेकिन ज़ाया भी नहीं करना क्योंकि ये भी गुनाह होता है। इस तरीके से ये हमने बाजू धो लिए, इस तरीके से पानी साफ कर लेना, ये बेहतर है, मुस्तहब है, क्योंकि कपड़े बचाने, कपड़े ख़राब ना हो। अब ये मैंने बाजू जो है धो लिए, उसके बाद मसा करना है। अब मसे में ये गलती होती है, बाज़ दफ़ा देखने में आता है कि लोग मसा जैसे जब बाजू धो लेते हैं तो उस वक्त ये उसके बाद ये करते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर बाजू धोने के बाद 3 मरतबा ऐसे कर लिया, यहाँ पानी ले लिया और ऐसे, और 3 मरतबा ऐसे, ये बिल्कुल भी गलत है, ये पानी का इसराफ है, ये कोई तरीका नहीं। आपने 3 मरतबा बाजू धो लिए, आपके बाजू धुल गए हैं। अब ये करेंगे तो ये इसराफ है, पानी ज़ाया होगा, तो इससे गुनाह ही मिलेगा और कोई तरीका नहीं है, ये कोई सुन्नत तरीका नहीं है। उसके बाद जो है मसा करेंगे। अब मसे में जो गलती होती है, बाज़ बार लोग जो है ऐसे करके आंखों पे लगाते हैं और फिर जो है मसा करते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी सुन्नत के खिलाफ है, ये सुन्नत नहीं, पता नहीं कहाँ से लोगों ने सीख लिया है, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। मसा करने का तरीका ये है कि ये देखें, हमने थोड़ा सा पानी लिया और ऐसे धोने नहीं, हाथ बिल्कुल भी ऐसे बैक साइड भी हाथ की जो है तर कर लें, क्योंकि गर्दन की पुश्त का भी मसा करना है। इस तरीके से ये पानी के साथ जो तर हो गया, उसके बाद अगर इस तरीके से कर लें, ये ऐसे करके सारे हाथ रखकर ऐसे कर लें, तब भी आपका मसा हो जाएगा। क्योंकि मसे में ये है कि चौथाई सर का हिस्से का मसा करना ये जरूरी है। अब ये मैंने हाथ रखा है सर के ऊपर, तो ये चौथाई सर पूरा हो गया, चौथाई सर का मसा हो गया। लेकिन मसा तो इस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन सुन्नत तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, मैं वो आपके सामने बयान करता हूँ। उन्होंने इस तरीके से हाथ को गीला किया, ये हो गया। अब ये 3 उंगलियां मिलाएंगे, ये देखें, ये 3 उंगलियां मिल जाएंगी। ये शहादत की और ये अंगूठे की उंगली ये अलग रखेंगे और हाथ की हथेली भी अलग रखेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हाथ की हथेली अलग रखी जाएगी। इसको बचाएंगे, हाथ की हथेली भी नहीं लगनी चाहिए सर को जाते वक्त, और उंगलियां, शहादत की उंगलियां और अंगूठा भी नहीं लगना चाहिए। ये 3 उंगलियां हो गई। इस तरीके से जहां से बाल शुरू हो रहे हैं ये यहां से ले लेंगे, हाथ की हथेली को और उंगलियों को बचाते हुए ऐसे ले जाएंगे बिल्कुल आखिर तक, गर्दन तक। अब ये उंगलियों का काम खत्म हो गया, उंगलियां जो थी उससे मसा हो गया। अब ये जो हथेलियां हमारी बच गई थी, उंगलियों की ड्यूटी खत्म, अब हथेलियों की शुरू हो गई। अब हथेलियां जो है बिल्कुल ऐसे करके वापस ले आएंगे आगे की तरफ, ये हो गया, ठीक है। अब जो है हमारा जो शहादत की उंगली और अंगूठा जो है बच गया था, ये हो गया। उसके बाद हम शहादत की उंगली से ये होगा कि ये जो कान के अंदर जो है ये इस तरीके से और ऐसे करके कान के अंदर से, और ये अंगूठा बच गया। अब अंगूठे से कान की बैक साइड से जो है मसा करेंगे, ये इस तरीके से, ठीक हो गया। अब हाथों की पुश्त बाकी रह गई थी और गर्दन की पुश्त बाकी है, तो हाथों की पुश्त से गर्दन की बैक साइड पर मसा करेंगे, ये देखें ऐसे करके। ये हमने सही तरीके से मसा कर लिया। वो तरीका भी गलत है जिस तरह लोग करते, इस तरह चूम कर और मसा करते, ये तरीका बिल्कुल गलत है, इस तरीके से मसा नहीं। और दूसरा ये भी तरीका होता है कि बाद में मसा करने के बाद फिर गर्दन की अगली साइड का भी मसा करते हैं, इस तरह करते हैं, इससे भी वुज़ू मकरूह हो जाता है। ये कोई मसा नहीं, मसा सिर्फ गर्दन की पुश्त का करना है, ठीक हो गया। ये मसा भी हमने कर लिया। उसके बाद हम धोएंगे पाँव। तो पाँव धोना कैसे है, 3 मरतबा पाँव धोएंगे, जैसा कि उंगलियों से शुरू हो गई, इससे भी ये इस तरह करके अच्छे तरीके से। सर्दियों में जल्द बहुत खुश्क होती है, तो इसलिए ये जो उंगलियां हैं, इनकी जो जड़ें हैं वहां तक जो है पानी नहीं पहुंच पाता, तो इनको अच्छे तरीके से धोएं, क्योंकि ये फर्ज में है। अगर इसमें कोई कमी कोताही रह गई तो आपका वुजू ही नहीं होगा। टखनों तक जो है, टखनों तक पाँव धोना ये ज़रूरी है, लेकिन आधी पिंडली तक धोना ये अफजल है, मुस्तहब है। तो मैं इसलिए आधी पिंडली तक धोऊंगा क्योंकि ये अफजल भी है और मुस्तहब भी है। अब यहां से पाँव धोना शुरू कर दिया हमने इस तरीके से। सर्दियों में ये एड़ियां वगैरह फट जाती हैं या नीचे जो है ये लाइनें बन जाती हैं जिसमें पानी नहीं हो, इस तरीके को अच्छे तरीके से मलेंगे तो तब जाकर ये जल्द जो है आपकी धुल पाएगी, वरना नहीं धुलेगी। तो ये जो एड़ियां फट जाती हैं उनमें भी पानी नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए इसको भी अच्छी तरीके से इस जगह को भी मल लें, और इस साइड से भी जो है ना पानी नहीं पहुंचता। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, बिल्कुल भी बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से आपने जो है ये 3 मरतबा पाँव मिल गया हमारा, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम ये वाली उंगली से खड़ा करेंगे,
ये दाएं पाँव की छिंगली उंगली, बाएं हाथ की छिंगली उंगली, इस तरीके से ये हो गया, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये दायां पाँव हमने धो लिया। उसके बाद बायां, ये भी उसी तरीके से अच्छे तरीके से उंगलियों की जो जड़ें हैं वहाँ पर भी अच्छे तरीके से धो ले, ताकि वो भी खुश्क न रह जाए। अच्छे तरीके से नीचे से भी मल लें ताकि वो जो है ना बिल्कुल भी ना रहे। ये एक मरतबा हो गया था, अभी हम दूसरी मरतबा इसी तरीके से बिल्कुल भी पिंडली, आधी पिंडली तक जो है ये धो लेंगे, ताकि ये अफजल है, मुस्तहब भी है। ठीक हो गया, ये हमने पाँव धो लिया। उसके बाद फिर अब वहां से छिंगली उंगली से शुरू किया था दाएं कदम पर, लेकिन बाएं पर ये फिर अंगूठे से शुरू करेंगे इस तरीके से। ये हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया। ये तरीका वुजू का था जो मैंने आपके सामने किया। उसके बाद अगर सूरत क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अगर ये सूरत आसमान की तरफ देखकर पढ़ी जाए तो उससे कभी भी जो है ना निगाह कमज़ोर नहीं होती, रोशनी निगाहों की जो होती है वो कमज़ोर नहीं होती। तो इसलिए उसके बाद सूरत क़द्र पढ़ें आसमान की तरफ देखकर। बहरकैफ ये मैंने आपको वुज़ू करने का जो है अमली तरीका आपके सामने बयान किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको समझ आया होगा। अगर ना आया हो तो दोबारा वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से वुज़ू करने का तरीका मालूम हो जाए।